Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great and making preparations for the board examinations. As you know that we are we have started a program here in CK classes, and the main aim and the objective of the program, that is ORCC, it is to help the students to come up with the flying colors as far as our board examination is concerned. So with regard to the same, आज मैं एक चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. In fact, I won't be discussing the entire chapter. I'll be discussing the important topics as far as our board examination is concerned. तो जो भी हम क्वेश्चन जो भी हम टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह जो पेपर आएगा 90-95% चांसेस हैं कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वही उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में दे सकता है. तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी का पहला वाला चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट इज, एज यू कैन सी हियर, इट इज रिसोर्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो इट इज द फर्स्ट चैप्टर जो आज हम ORCC में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड इसमें इस वाले चैप्टर में द डिफरेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स या द डिफरेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें पहला यू कैन सी हियर नंबर 1 जो है, यू कैन सी नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट. ये पहला जो है क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. इनफैक्ट हम पूरी ब्लैक सॉइल को यहां पे डिस्कस करेंगे. And when we'll be discussing the entire this topic, that is the black soil, तो उसी में फिर हम डिस्कस करेंगे कि किन किन स्टेट्स में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और कौन कौन से क्रॉप्स हम ब्लैक सॉइल में कल्टिवेट कर सकते हैं. देन वी आर हैविंग अनदर इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज. कि हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, soil erosion को minimize करने के लिए, what are the different steps that we can take in order to control the soil erosion in the hilly areas. Then next question is, what do you understand by sustainable economic development? कि sustainable economic development क्या है. Then is, what is agenda 21st, another important question of the chapter. Then we are having explain 3 stages of resource planning, very important question from the examination point of view. Then is explain soil erosion and give the steps that should be taken to control soil erosion. कि soil erosion क्या है, what is soil erosion, and what are the different factors by which soil erosion can be controlled. Then we are having write 3 physical and 3 human factors which determine the use of land. तो यहाँ पे आपको 3 physical and 3 human factors explain करने हैं which determine the use of land. Then another important question of the chapter is examine the major problems created as a result of the indiscriminate utilization of the natural resources. कि अगर हम natural resources को indiscriminate way में use करेंगे तो what are the different problems that may arise. Then we are having question number 7 is measures to control land degradation. What are the different measures by which land degradation can be controlled. Then we are having question number 8 is distinguish between khadar and the bhangar alluvial soil. These are the 2 types of the alluvial soils. इनमें differences आपको देनी है कि what are the major differences between the bhangar and the khadar alluvial soil. Then we are having question number 9 is distinguish between gully erosion and the sheet erosion. Gully erosion and sheet erosion में क्या differences हैं. Then question number 10 is factors affecting soil formation. What are the different factors affecting soil formation? So these are the expected questions. These are the important questions as far as the first chapter of your geography notebook is concerned, that is your geography textbook is concerned, that is resources and the development. So जो पेपर आएगा 90-95% चांसेस है कि क्वेश्चन जो है ना इन्हीं 10 क्वेश्चन जो है ना
एग्जामिनर दे सकता है, मे बी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, मगर क्वेश्चन जो ना यही क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट this topic, first important question, yeah, first important topic of the chapter, that is sustainable development. Sustainable development की जब हम बात करते हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो बड़ा आपने याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। इसमें आपने लिखना क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, इट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें तरक्की करनी है, हमें ना वी हैव टू मेक द डेवलपमेंट, वी हैव टू मेक द प्रोग्रेस एंड द प्रॉस्पेरिटी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, या इन अदर वर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग द रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। कि हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज करने हैं कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे बाद आने वाली फ्यूचर जनरेशन है ना, उनके नीड्स जो है ना, उनके नीड्स जो है वो भी फुलफिल होने चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स डेवलपमेंट that takes place without damaging the environment, or in other words using the resources keeping in mind the needs of the future generations. As you can see here, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, कीपिंग इन व्यू ऑफ जस्टिफाइड यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कि हमें रिसोर्सेज का जस्टिफाइड यूज करना है, एंड कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड, दैट जस्टिफाइड यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो है, इट वाज कन्वेन्ड इन 1992 ब्राजील में, रायो डी जेनेरो। जी हमारा ये अलग टॉपिक है इस चैप्टर में। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट दैट वाज हेल्ड इन रायो इन ब्राजील। सो आई एम सेइंग कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन व्यू द जस्टिफाइड यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन दो चीजों को दिमाग में रखते हुए फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो है ना, इट वाज हेल्ड इन ब्राजील इन रायो 1992, एंड वर्ल्ड के मोर देन 100 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, 100 कंट्रीज के जो हेड्स है, वो असेंबल हुए यहाँ पे रायो में, ब्राजील में, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने एग्री किया, या वी कैन से दे अडॉप्टेड एजेंडा 21। एजेंडा 21 वहां पे अडॉप्ट किया गया, और एजेंडा 21 का मकसद ये था कि दैट वी हैव टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। कि 21st सेंचुरी में जो ये एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो रायो ब्राजील में हुई थी 1992 में, तो वहां पे इन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया, एंड द मेन objective and the main motto of the agenda 21 was to achieve sustainable development in the 21st century. And this is ये जो sustainable development topic हमने यहाँ पे डिस्कस किया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आ सकता है। या इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर का, दैट इज एजेंडा 21। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 हमने भी डिस्कस किया कि ये एक एजेंडा था जो इन कंट्रीज ने, कि 100 कंट्रीज के जो हेड्स हैं, 100 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो असेंबल हुए रायो डी जेनेरो में, ब्राजील में, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये एजेंडा था, एंड इसका मकसद क्या था, कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, कि कंट्रोल करना है, एनवायरमेंट डैमेज को कंट्रोल करना है। उसके बाद में पावर्टी जो है ना, इसको कंट्रोल, डैमेज, हाउ कैन वी कंट्रोल poverty, and how can we control diseases, that is through global cooperation, कि ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट्स, कि ग्लोबली जो सारे कंट्रीज है इनको इसमें एक दूसरे को कॉपरेट करना है, ओनली देन दिस एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है, पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जा सकता है, डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट्स
and shared responsibilities. So एजेंडा 21st जो है, एजेंडा 21st में आपने सिंपली ये याद रखना है कि इट वाज एन एजेंडा टू combat environmental damage, then poverty, disease. मगर कैसे हम करेंगे? थ्रू ग्लोबल म्यूचुअल कॉपरेशन, through global mutual cooperation on common interests, then we are having mutual needs and shared responsibilities. So this was sustainable development and the agenda 21st. important topics है इस chapter की जब हम बात करते हैं resources and development. उसके बाद में another important topic of the chapter is that is problems created by indiscriminate use of resources by man. कि जब हम human beings resources को use करेंगे in an indiscriminate way, what are the different problems or that may arise. अगर हम resources को use करेंगे in an indiscriminate way में हम use करेंगे, तो ये question भी short answer type question इसके आने के chances है. question ये आएगा कि what are the different problems created by the use of created by the indiscriminate use of resources by man. तो पहला क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है अगर हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे इन एन इनडिस्क्रिमिनेट वे? नंबर 1 इज बहुत सारे रिसोर्सेज जो है ना वो डिप्लीट हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? आपको पता ही है कि अगर हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे, उनको हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ओवर यूज करेंगे, तो डेफिनेटली कि रिसोर्सेज जो है ना ये जो है ना डिप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल नहीं है. देयर आर मेनी रिसोर्सेज विच आर नॉन रिन्यूएबल. तो अगर हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे इनडिस्क्रिमिनेट वे में, तो रिसोर्सेज जो है ना वो डिप्लीट हो जाएंगे. लाइक एग्जांपल जो हमारे पास फॉरेस्ट्स की एग्जांपल है. अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट कैन अराइज कि रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल, एंड उससे क्या हो जाएगा? सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी into two segments. Society divide हो जाएगी into two groups, into two segments, that is the haves and the have nots. I mean to say rich and poor. कि अगर हम resources को indiscriminate way में use करेंगे, तो resources जो है ना they will get accumulated in the hands of the few people, and eventually society जो है ये divide हो जाएगी into two segments, that is haves and the have nots, that is the rich and the poor. Another important problem जो है जो arise हो सकती है, it is global warming हो जाएगी अगर हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करेंगे. जो ऑलरेडी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है विच कैन अराइज, एंड ये प्रॉब्लम भी हम प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं. उसके बाद में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, दीज आर द अदर प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज, दैट मे अराइज बिकॉज ऑफ द indiscriminate use of resources by the human beings. ठीक है? तो ये है, ये इसी तरह से इसका आप आंसर ब्लड पॉइंट्स में ब्रेक करोगे, इसी तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे. ये अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप 3 पॉइंट्स लिखोगे. अगर ये 4 मार्क्स का आया या फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का आया, हालांकि इसकी चांसेस हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आ सकता है, तो अगर ये अब 3 या 4 या 5 मार्क्स का आ गया, तो इन पॉइंट्स को भी आप बाद में फिर ब्लड पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते हो. तो प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स, इसमें पहला मैनी रिसोर्सेज जो है ना वो डिप्लीट हो सकते हैं या ऑलरेडी हुए भी है. एग्जांपल जो है फॉरेस्ट्स की. रिसोर्सेज को अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल, एंड उससे होगा क्या कि सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी into two segments, that is haves and the have not. And other problems that we may face is global warming, then we are having ozone layer depletion, then we are having environmental degradation. So this is the topic, problems created by indiscriminate use of resources by man. And then we are having resource planning. ठीक है? Resource planning, very important question फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हर साल अगर आप देखोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ये पेपर जो है वो आपने चेक किए होंगे, तो उनमें से बहुत सारे पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आपको मिला होगा वहां पे, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग. इनफैक्ट हमें यहाँ पे स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ओके, स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. What are the different stages of resource planning? Is that clear? So this is ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। तो पहले हम रिसोर्स प्लानिंग की हम बात करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग है क्या? एज वी नो दैट रिसोर्स जो है दे आर लिमिटेड and at the same time they are unevenly distributed. So resources on the one hand when they are limited and on the other hand when they are unevenly distributed, it's very important कि हमने resource की proper planning करनी है before using them. तो resource planning क्या है? It is a technique or skill of proper utilization of the resources. I'm repeating the definition of the resource planning, that resource planning is a technique or skill of proper utilization of the resources. Now talking about the स्टेजेस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्सेज को हमने ना प्लान करना है। रिसोर्स प्लानिंग हमने क्या करनी है? फॉर दैट देयर आर 3 स्टेजेस, ठीक है ना। वो स्टेजेस क्या है? नंबर 1 स्टेज जो है इट इज आइडेंटिफिकेशन। पहले वाले स्टेज में आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्सेज को आपने आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज ना फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में आपको प्लानिंग करनी है। अब आपने पहली वाली स्टेज में आपने आइडेंटिफाई किया रिसोर्सेज को, तो सेकंड स्टेज क्या है? बाद में प्लानिंग करनी है। उसके बाद में थर्ड जो है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। तो इनको हम थोड़ा इलैबोरेट करेंगे इन स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग को। तो पहले वाली स्टेज में हमने बोला रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। पहले वाले स्टेज में क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है एंड एट द सेम टाइम रिसोर्सेज को आपने क्या करना है? यू हैव टू लिस्ट देम। तो और इसमें क्या क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? सर्वेइंग करनी है, उसके बाद में मैपिंग करनी है एंड उसके बाद में मेजर करना है क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज ऑफ द रिसोर्सेज को। आप ना रिसोर्सेज को, रिसोर्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को आपने मेजर करना है एंड एट द सेम टाइम ना ये जो है ना ये जो सर्वेइंग आप करोगे, उसके बाद में फिर ना मैपिंग आप करोगे और इसके बाद में फिर क्वालिटी एंड क्वांटिटी को आप रिसोर्सेज की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को आप एस्टिमेट करोगे एंड इसके अलावा रिसोर्सेज की जो प्रॉपर्टीज है उनको आपने मेजर करना है। तो ये है पहली वाली स्टेज रिसोर्स प्लानिंग की, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग द रिसोर्सेज। इसमें क्या करना है? सर्वेइंग, मैपिंग एंड इसके बाद में मेजर करना है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज एंड इसके अलावा क्वालिटेटिव एंड उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी एस्टिमेट। को आपने मैच करना है फिर विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, अगर आप रिसोर्स को यूज कर रहे हो ना, तो इससे आपने देखना है फिर कि, या इससे आपने ये देखना है कि क्या इससे नेशनल डेवलपमेंट होती है कि नहीं। ना कि एक पर्टिकुलर ना रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया जो है ना वो डेवलप नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो ये है इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग में हमने सिंपली याद रखा कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड उसके बाद में स्टेजेस क्या क्या है? स्टेजेस में हमने पहला बोला आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, देन सेकंड है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉइटेशन एंड थर्ड वाला है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स with the overall national development plans. So this is resource planning. Then another important topic जो है importance of resource planning. ये भी एक important question है जो एग्जामिनर का ना एग्जाम में दे सकता है।
व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाई देयर इज द नीड, व्हाई देयर इज द नीड टू प्लान द रिसोर्सेज, या हम ऐसे बोलेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो इसमें क्या ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग करना इन अ कंट्री लाइक इंडिया। एज जो मैंने इस अभी भी मैंने आप लोगों को बोला कि इंडिया में रिसोर्सेज जो है ऑन द वन साइड दे आर limited and at the same time they are unevenly distributed, so it is very important कि रिसोर्स को यूज करने से पहले हमें उनकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास सिचुएशन क्या है, ऑन दी वन हैंड रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग करनी है। इज दैट क्लियर? मगर यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इंपॉर्टेंस क्या है रिसोर्स प्लानिंग की इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे एरियाज आपको मिलेंगे which are rich in one type of resources but they are lacking behind in the other. Is that clear? तो ना जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखोगे कुछ एरियाज जो है they are rich in certain resources while as they are poor in the other resources. यहां पे एग्जांपल लेंगे हम राजस्थान की। राजस्थान इंडिया की नॉर्थ वेस्ट साइड में है, तो राजस्थान की अगर हम बात करेंगे, आपको पता ही है कि लेस रेनफॉल एरिया में कंसिडर की जाती है राजस्थान। और राजस्थान की जब हम बात करते हैं, यहां पे वाटर की स्कैर्सिटी है, यहां पे वाटर की डर्थ है, क्योंकि बहुत कम रेनफॉल होती है राजस्थान में, एंड राजस्थान में देयर इज द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। मगर यहां पे राजस्थान की जब हम बात करते हैं, राजस्थान रिच है सोलर एंड विंड एनर्जी में, बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है राजस्थान में कि राजस्थान से हम सोलर एंड विंड एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। सो राजस्थान इज रिच इन solar and wind energy, but there is scarcity of water as far as Rajasthan is concerned. Then we are having some regions are self sufficient while other regions are very poor in important resources. कि कुछ ऐसे areas हैं हमारी country में which are self sufficient in one resources but they are lacking behind as far as the other resources are concerned. यहां पे हम और एक स्टेट की एग्जांपल लेंगे, एमपी की हम एग्जांपल लेंगे, ये जो सेंट्रल इंडिया में है, तो यहां पे एमपी जो है ना इट इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज। मगर लद्दाख की हम बात करेंगे, जो अब यूनियन टेरिटरी में इसको कन्वर्ट किया गया, लद्दाख जो है ना इट इज पुअर इन रिसोर्सेज। चाहे हम वाटर की एग्जांपल लेंगे, चाहे वाटर की भी स्कैर्सिटी है लद्दाख में, या चाहे हम बाकी इंफ्रा की बात करेंगे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो एमपी जो है ना इट इज रिच इन रिसोर्सेज while as Ladakh, which is a union territory, is poor in resources, whether we talk about the water resources, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। यहां पे हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि कुछ एरियाज, कुछ रीजन्स, कुछ स्टेट्स जो है ना दे आर रिच, दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन रिसोर्सेज, while as there are other regions, other areas or other regions which are poor as far as the resources are concerned. Then wastage of resources can be avoided by planning. अगर हम resources की proper planning करेंगे तो wastage को हम minimize कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर हम resources की proper planning करेंगे तो हम जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। क्योंकि ऊपर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन ए कंट्री लाइक इंडिया। तो क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो वेस्टेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इसके बाद में ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है ना उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है या ओवर यूज जो है या एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया। Okay, so moving on to the next one, that is ideas of Gandhi ji about the conservation of resources. इससे related अलग क्वेश्चन आ सकता है, what are the ideas of महात्मा गांधी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, की गांधी जी के क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो एनलाइटनड पीपल थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर हम
रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे या उनका हम ओवर यूज करेंगे तो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में अराइज। एंड गांधी जी ने विथ रिगार्ड टू द सेम उसने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में क्या बोला? नंबर 1 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. This was the one point that was discussed or that was given by the Mahatma Gandhi, the father of nation, that there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे it is full of resources as far as our need is concerned. बट अगर हम ना ग्रीडी बनेंगे, फिर ग्रीडी पर्सन्स के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। सो अगर हम एज पर आवर नीड, इंडिया में बहुत रिसोर्सेज है, ठीक है ना, तो देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी इज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडी इज ग्रीड। ये पहला पॉइंट महात्मा गांधी ने जो है डिस्कस किया, या महात्मा गांधी ने जो पहला पॉइंट दिया या उसने जो आवाज उठाई अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसने पहला पॉइंट यही बोला कि दैट देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी इज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडी इज ग्रीड। दूसरा उसने बोला कि रिसोर्स जो है ना वो डिप्लीट हो रहा है, वर्ल्ड वाइड रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? इट इज ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स। हाँ, वी पीपल आर ग्रीडी एंड वी आर सेल्फिश, एंड ये जो नेचर है ग्रीडी नेचर एंड सेल्फिश नेचर जो है इंडिविजुअल्स का, it is the main reason responsible for the depletion of resources at the global level. इतना ही नहीं बल्कि exploitative nature of the modern technology, कि exploitative nature of the modern technology जो है, ये भी एक important reason दिया महात्मा गांधी ने कि resources क्यों world wide deplete हो रहे हैं। इसका reason क्या है? Greedy and selfish nature of the individuals, and second is the exploitative nature of the modern technology is another important reason given by Mahatma Gandhi for the depletion of resources at the global level. Then he was against mass production. महात्मा गांधी जो था वो he was against mass production and इसको replace करना चाहता था and wanted to replace it with production by the masses. कि महात्मा गांधी जो था he was against mass production and उस चीज को वो रिप्लेस करना चाहता था प्रोडक्शन बाय द मासेस. सो दीज आर द आइडियाज गिवन बाय महात्मा गांधी एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कंसर्न. Okay, so these were the ideas of Mahatma Gandhi about the conservation of resources. Then we are having land conservation measures, कि land को कंजर्व करने के लिए इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. What are the different measures to control what are the different measures to control land degradation? कि लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स है, कैसे हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लैंड डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स? तो एज यू कैन सी हियर, सॉइल इरोजन की जब हम बात करते हैं, सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? नंबर 1 कि हमें डिफॉरेस्टेशन को क्या करना है, खत्म करना है. अगर हम चाहते हैं लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना, अगर हम चाहते हैं कि सॉइल इरोजन को हम क्या करें, कंट्रोल करें, अगर हम चाहते हैं कि सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल करें, या अगर हम चाहते हैं कि लैंड जो है ना डिग्रेडेशन को हम कंट्रोल करें, उसको हम मिनिमाइज करें, तो उसके लिए हमें डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना है. डिफॉरेस्टेशन एज यू नो इट मीन्स लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज. उस चीज को हमने खत्म करना है. उसके बाद में हमने ग्रेजिंग को कंट्रोल करना है. इनफैक्ट वी कैन यूज हियर कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग. ठीक है. देन इसके अलावा हमें एनकरेज करना है फॉरेस्टेशन को, कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को हमें प्लांट करना है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एंड इसके अलावा हमें वी हैव टू प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में, क्योंकि अगर आप सॉइल कंजर्वेटिव टेक्निक्स की हम बात करेंगे तो एक एरिया में एक सॉइल कंजर्वेटिव टेक्निक काम करेगी, वाइल एज दूसरे एरिया में दूसरी सॉइल कंजर्वेटिव टेक्निक जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं. सो जो टेक्निक्स है सॉइल कंजर्वेटिव टेक्निक्स जो है ना, they vary from one area to another depending upon the environment. ये environmental conditions के ऊपर डिपेंड करता है. So I'm saying how can we control the soil erosion? How can we control the land degradation? हमें deforestation को कंट्रोल करना है. Then we have to control overgrazing. हमें encourage करना है forestation को, कि ज्यादा से ज्यादा trees को हमें plant करना चाहिए on the surface of the earth. और इसके अलावा hilly areas में हमें terrace farming करनी चाहिए. उसके बाद में हमें प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, तो हमें शेल्टर बेल्ट्स लगाने चाहिए, या हम बोलेंगे प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स. ये हमने वन शॉट में भी डिस्कस किया था.
प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि अगर आपके पास, ये ज्यादातर ड्राई एरियाज में चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लैंड है और ड्राई एरियाज में विंड इरोजन ज्यादा होती है, विंड से ज्यादा इरोजन होती है ड्राई एरियाज में, तो वहां पे ड्राई एरियाज में विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, विंड इरोजन को मिनिमाइज करने के लिए लैंड के चारों साइड रोज ऑफ प्लांट्स या श्रब्स लगाए जाते हैं, एंड वो रोज ऑफ प्लांट्स विंड की स्पीड को मिनिमाइज करते हैं, विंड की स्पीड को ब्रेक करते हैं। इज दैट क्लियर? तो वही रोज ऑफ प्लांट्स लगाने को बोला जाता है प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। मगर कहां पे किया जाता है? ये ड्राई एरियाज में किया जाता है कि ड्राई एरियाज में लैंड के चारों साइड से रोज ऑफ प्लांट्स या श्रब्स लगाए जाते हैं या ग्रास लगाया जाता है ताकि विंड की स्पीड को मिनिमाइज किया जाए, ताकि विंड की स्पीड को ब्रेक किया जाए, एंड उसी को बोला जाता है रोज ऑफ प्लांट्स या श्रब्स या ग्रास को लगाने को बोला जाता है प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स लगाने से भी हम है ना सॉइल इरोजन को या लैंड डिग्रेडेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय कल्टिवेटिंग थॉर्नी बुशेस, कि डेजर्ट एरियाज में हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, वहां पे सैंड ड्यून्स ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। सैंड ड्यून्स हम बोलेंगे छोटे छोटे सैंड के पहाड़ वहां पे बनते हैं, तो इन सैंड ड्यून्स को हम डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, इनको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं सैंड ड्यून्स को। मगर कैसे करेंगे स्टेबलाइज? इसको हम वहां पे हमें थॉर्नी बुशेस वगैरह, कैक्टस वगैरह, ये ट्रीज हमने वहां पे प्लांट करने हैं, एंड उससे हम स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। सैंड ड्यून्स जो है ना उनको बनने से हम रोक सकते हैं डेजर्ट एरियाज में, ड्राई एरियाज में। तो ये और एक तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में माइनिंग एक्टिविटीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए। माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग भी एक इंपॉर्टेंट काज है लैंड डिग्रेडेशन का, सॉइल इरोजन का, तो माइनिंग एक्टिविटीज को हमने कंट्रोल करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूसेस वेस्टेज कैन बी अडॉप्टेड, हमें नई टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, हमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए जो वेस्टेज को रिड्यूस कर सकता है, कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, उससे हम वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड, कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है हमें उनको ट्रीट करना चाहिए टू रिमूव द हार्मफुल सबस्टेंसेस, कि हार्मफुल सबस्टेंसेस को रिमूव करने के लिए इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है हमें उनको ट्रीट करना चाहिए ताकि वहां से रिमूव किया जाए हार्मफुल सबस्टेंसेस को। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है अगर ये लैंड के साथ मिक्स हो जाएगा तो ये लैंड की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करता है। तो ये इनफैक्ट अगर ये वेस्ट पानी में जाएगा तो ये पानी को भी कंटेमिनेट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है हमें उनको ट्रीट करना चाहिए। एंड देन वी आर हैविंग अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, कि अर्बन वेस्ट जो है ना उसको यूज करना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस एंड दिस मैन्यूअर, कि जो अर्बन एरिया से जो वेस्ट निकलता है उसको हमें यूज करना चाहिए दिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायो मैन्यूअर। देन वी आर हैविंग over irrigation should be stopped and new methods of irrigation should be followed, कि over irrigation को हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ओवर इरिगेशन से भी सॉइल इरोजन हो जाती है, ओवर इरिगेशन से भी लैंड डिग्रेड हो जाती है, ओवर इरिगेशन से लैंड में सैलिनाइजेशन होती है, साल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। तो ओवर इरिगेशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ओवर इरिगेशन को हमें मिनिमाइज करना चाहिए, एंड उसके लिए हमें there are other methods of irrigation, वो हमें यूज करने चाहिए, और ओवर इरिगेशन जो है इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। सो दिस इज लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, या कैसे हम सॉइल इरोजन को हम, या हम बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स? सो दीज आर द six measures as far as the land conservation is concerned. Is that clear? Now moving on to the another important topic, that is factors which influence और गवर्न द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, कि सॉइल जो है आपको पता ही है कि सॉइल को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सॉइल फॉर्मेशन जो है इट इज अ स्लो प्रोसेस, एंड आपने पढ़ा भी होगा दैट इट टेक्स thousands and thousands of years to get 2 to 3 centimeters of soil. ओके, 2 से 3 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में या thousands and thousands of years लगता है, मगर इरोजन में विद इन नो टाइम सॉइल जो है ना ये इरोड हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे सॉइल जो है ना इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है बनने में, मगर हमने बोला कि सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है,
ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो वी कांट से दैट ओनली वन फैक्टर इज होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और वी कैन से गवर्निंग द सॉइल फॉर्मेशन? इज दैट क्लियर? तो सॉइल फॉर्मेशन में पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट एक है अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं इसमें स्पेशली ओके, इसमें रेनफॉल एंड टेम्परेचर आता है। ओके, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, तो ये दो ना इंपॉर्टेंट है। रेनफॉल एंड टेम्परेचर जो है जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, ठीक है, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट में रेनफॉल एंड टेम्परेचर कि ये दो जो है ना ये डिसाइड करता है रेट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ व्हाट? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। और जितना टेम्परेचर एंड रेनफॉल फ्लक्चुएट करेगा उतना ही एक्सेलरेट हो जाएगा रेट ऑफ वेदरिंग, ठीक है ना। क्लाइमेट का इंपैक्ट, क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। जित क्लाइमेट में स्पेशली टेम्परेचर एंड रेनफॉल और वी कैन से टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन, जितना ये दो चीजें फ्लक्चुएट करेंगे, जितना ये दो चीजें वैरी करेंगे ना उतना ही एक्सेलरेट हो जाएगा रेट ऑफ वेदरिंग, ठीक है। तो दिस इज क्लाइमेट डिसाइड्स द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन। कि क्लाइमेट जो है ना ये रेट ऑफ वेदरिंग भी डिसाइड करता है। इसी में क्लाइमेट में टेम्परेचर एंड रेनफॉल आता है या प्रेसिपिटेशन आता है। जितना टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, जितना रेनफॉल फ्लक्चुएट करेगी ना उतना ही रेट ऑफ वेदरिंग और वेजिटेशन को भी ये जो है डिसाइड करता है। उसके बाद में टोपोग्राफी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड। अगर फॉर एग्जांपल जो जहां पे लैंड फ्लैट होगी, जो प्लेन एरिया होगा वहां पे ज्यादा सॉइल बनेगी एज कंपेयर टू द हिल एरियाज, एज कंपेयर टू द स्लोप्स। स्लोप एरिया के ऊपर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से सॉइल विल स्लाइड डाउन। तो स्लोपी एरियाज के ऊपर जो हिली एरियाज है, जो जहां पे लैंड का स्टीप स्लोप है वहां पे सॉइल बनेगी नहीं, वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सॉइल जो है ना इट विल स्लाइड डाउन, ठीक है। और फ्लैट लैंड जो है, प्लेन एरिया जो है वहां पे ज्यादा सॉइल बनेगी। तो टोपोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड का इंपैक्ट पड़ता है। एज यू कैन सी हियर, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड्स द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी जहां पे लैंड फ्लैट है, जहां पे प्लेन एरिया है, वाइल एज हिली एरियाज में सॉइल एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगी बिकॉज वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सॉइल विल स्लाइड डाउन। उसके बाद में देन वी आर हैविंग नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है, ठीक है ना, इट इज द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्मड, ठीक है। और ये क्या डिसाइड करता है, पेरेंट रॉक डिसाइड करता है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, कि सॉइल में सॉइल का जो कंपोजिशन है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो पेरेंट रॉक की जब हम बात करते हैं, हमने बोला कि पेरेंट रॉक होती है द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्मड, और नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक डिसाइड करता है सॉइल का कंपोजिशन एंड इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। देन वी आर हैविंग वेजिटेशन। वेजिटेशन डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सॉइल, कि सॉइल में कितना ह्यूमस है वो डिपेंड करता है वेजिटेशन के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो ह्यूमस जिस सॉइल में, द सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जिस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होता है, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है, दैट सॉइल इज कंसिडर्ड सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। नो डाउट बाकी इंग्रेडिएंट्स भी होने चाहिए, ठीक है ना, उसमें नाइट्रोजन भी होना चाहिए, उसमें फास्फोरस भी होना चाहिए, उसमें लाइम, पोटाश या मैग्नीशियम वगैरह भी होना चाहिए, मगर ह्यूमस जो है ना ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एंड जिसमें ह्यूमस ज्यादा होगा, जो सॉइल रिच होगी ह्यूमस में, दैट इज कंसिडर्ड फर्टाइल एंड दैट इज कंसिडर्ड fit for the cultivation or suitable for the cultivation of the crops. So these are the factors that are influencing or governing the soil formation. Is that clear? और इसी में ये जो आप देख रहे हो factors affecting formation of soil, जो फ्लो चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें पेरेंट रॉक का रोल है, इसमें क्लाइमेट का रोल है, इसमें वेजिटेशन का रोल है, इसमें
विंड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। उसके बाद में ग्लेशियर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में टेम्परेचर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आने के चांसेस हैं, तो आप अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको ब्लड पॉइंट्स में ब्रेक करना है। अगर आप एक्सप्लेन करोगे इन पॉइंट्स को वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी करोगे ना, इसी तरह से आप फ्लो चार्ट बनाओगे, इसी तरह से आपने इन फैक्टर्स को लिखना है वन बाय वन। वी हैव पेरेंट रॉक, और वी कैन राइट हियर नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, we can write the climatic conditions, vegetation, wind, activity of decomposition, glaciers. Then we are having organic and inorganic material. Last but not least, that is the temperature. So these are the factors affecting soil formation. ठीक है, then we are having soils are our prime resources. Soils की हम बात करते हैं, soil हमें नेचर ने डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स? क्योंकि हमारा सर्वाइवल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। नो डाउट एयर का इंपॉर्टेंट रोल है, वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, मगर सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज फार एज आवर सर्वाइवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसर्न। तो सॉइल की जब हम बात करते हैं, एज वी नो, सॉइल जो है हमारी 95% रिक्वायरमेंट जो है ना, वो डायरेक्टली फुलफिल होता है लैंड से। ठीक है ना, वो डायरेक्टली फुलफिल होता है सॉइल से, इंक्लूडिंग आवर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आता है। तो दीज आर आर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, शेल्टर एंड द क्लॉथिंग। तो यहां पे आप देखोगे हमारे 95% रिक्वायरमेंट जो है वो डायरेक्टली फुलफिल होते हैं लैंड से, सॉइल से। तो सॉइल क्यों सॉइल को हम बोलते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट या प्राइम रिसोर्सेज है हमारे लिए? क्यों? नंबर वन की हम मेन जो है ना, वी पीपल जो है ना, वी डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन द सॉइल फॉर आवर फूड। कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो सर्वाइवल है या हमारा जो सर्वाइवल है ये डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सो दैट्स व्हाई सॉइल जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। उसके बाद में एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिसड ओनली इफ सॉइल्स आर अवेलेबल। जब सॉइल अवेलेबल होगी तब जाके हम क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं। और सॉइल जो है ना, सॉइल कहीं पे आपको पता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लद्दाख की एग्जांपल लेंगे, वहां पे आप देखोगे कि सॉइल इनफर्टाइल है, रॉकी है, तो दैट एरिया इज नॉट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो सॉइल जो है ना, सॉइल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि सॉइल के ऊपर ही हम क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। एंड इसके अलावा सॉइल मैन गेट्स द मटीरियल्स नीडेड फॉर शेल्टर, क्लॉथिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। तो वी आर गेटिंग अदर मटीरियल्स फ्रॉम द सॉइल। हमारा जो शेल्टर, जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया, हमारा जो शेल्टर है, हमारी जो क्लॉथिंग है या हमारा जो फूड है, वी गेट इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। एंड सॉइल्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट्स। एंड फॉरेस्ट जो है ना, या फॉरेस्ट्स की हम बात करेंगे, ट्रीज की हम बात करेंगे, क्रॉप्स की हम बात करेंगे, ये तभी पॉसिबल है या इनकी ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास सॉइल होगी। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए, ये 4 पॉइंट्स जो है ना, ये इस बात को डिपिक्ट करता है, ये इस बात को जस्टिफाई करता है कि सॉइल जो है दे आर प्राइम रिसोर्सेज, और हमारा जो सर्वाइवल है, हमारी जो डिपेंडेंस है, ये सॉइल के ऊपर है ना, सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए, ये इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि दैट सॉइल रियली एक इंपॉर्टेंट प्राइम रिसोर्सेज है हमारे लिए, जिसके ऊपर हमारा सर्वाइवल जो है वो डिपेंडेंट है। सो दिस इज सॉइल्स आर प्राइम रिसोर्सेज। देन सॉइल्स से ही रिलेटेड वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। ठीक है, कि सॉइल्स को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट टाइप्स में। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आप देखोगे ये जो क्लासिफिकेशन सॉइल्स की गई है, हालांकि वन शॉट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वी हैव a council called Indian Council of Agricultural Research। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1953 में सेटअप किया ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है 1953 में ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी सेटअप की गई। एंड उसी ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी ने इंडिया के सॉइल्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया। लाइक वी हैव एलुवियल सॉइल, वी हैव ब्लैक रेड सॉइल, लेट्रॉइड सॉइल, एरिड सॉइल, एंड देन वी आर हैविंग व्हाट, फॉरेस्ट सॉइल। मगर इसके अलावा
इसके अलावा हमारे पास इन सॉइल्स को जो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? वी हैव कलर, उसके बाद में फिर थिकनेस, देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन वी आर हैविंग टेक्सचर, एज। तो सॉइल्स को कलर की बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है, टेक्सचर की बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है, थिकनेस की बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है, या सॉइल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, या इसके अलावा टेक्सचर एंड एज की बेसिस पे भी सॉइल्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। हियर यू कैन सी हियर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो 6 टाइप्स के सॉइल्स इंडिया में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, 6 टाइप्स के सॉइल्स इंडिया में आइडेंटिफाई किए गए। नंबर 1 इज द एल्यूवियल सॉइल, इज दैट क्लियर? देन वी आर हैविंग सेकंड इज ब्लैक सॉइल, देन वी आर हैविंग द रेड सॉइल, इसको रेड एंड येलो सॉइल भी बोलते हैं, देन वी आर हैविंग लेटराइट सॉइल, देन वी आर हैविंग एरिड सॉइल, एंड उसके बाद में वी आर हैविंग द फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, और इसमें से जो हमने डिस्कस करना है, एज यू कैन सी हियर एल्यूवियल सॉइल, देन वी आर हैविंग एल्यूवियल सॉइल को मैंने यहां पे इसलिए ना ये टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करना है क्योंकि अगर आपने पहले जो 10 क्वेश्चंस देखे होंगे, उन 10 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन वहां पे था कि आपने डिफरेंशिएट करना था बिटवीन द बांगर एंड द खदर एल्यूवियल सॉइल। तो उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बांगर एंड द खदर एल्यूवियल सॉइल। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए मैंने ये पूरी सॉइल से रिलेटेड यहां पे आपके साथ स्लाइड शेयर की है। एल्यूवियल सॉइल की जब हम बात करते हैं, ये सबसे फर्टाइल टाइप की सॉइल पाई जाती है इंडिया में। खाली फर्टाइल ही नहीं, सबसे मोस्ट फर्टाइल ही नहीं है, बल्कि एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट डोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। फर्टाइल है एंड एट द सेम टाइम डोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इंडिया में पाई जाती हैं, एंड इट इज फार्मड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन स्लिट कॉल्ड एल्यूम बाय द रिवर्स। और ये बनती कैसे हैं? रिवर्स जो है ना, रिवर्स अपने साथ लाते हैं स्लिट, एंड उसी स्लिट को डिपॉजिट रिवर्स डिपॉजिट करते हैं, एंड उसी स्लिट की डिपोजिशन की वजह से एल्यूवियल सॉइल हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपको पता ही है कि व्हेन द हिमालयाज केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब क्लूजन हो गया इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट का एरोशियन प्लेट के साथ टथी सी के ऊपर, हिमालयाज केम इनटू एग्जिस्टेंस। हिमालयाज के साउथ में एक बड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो गया, एंड वो डिप्रेशन बाद में फिर कैसे फिलअप हो गया? वो उसी एल्यूम से, उसी एल्यूवियल सॉइल से फिलअप हो गया, उसी सिलिट से फिलअप हो गया, जो रिवर्स ने कैरी किया। द रिवर्स which were flowing or which are flowing in the northern and southern part of the country, तो उन्हीं रिवर्स ने अपने साथ कैरी किया सिलिट, एंड उस सिलिट को डिपॉजिट किया, एंड उसी सिलिट की डिपॉजिशन की वजह से एल्यूवियल सॉइल जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसलिए नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स में यू विल फाइंड द एल्यूवियल सॉइल। देन इट इज, ये कहां पे पाई जाते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल की जब हम बात करते हैं। गुजरात प्लेन्स में पाई जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, and it consists of sand, silt and clay. Then it is on the basis of age, alluvial soil को further 2 types में classify किया गया है। ये important point जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, इसीलिए मैंने ये पूरा alluvial soil आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है ना, कि on the basis of age alluvial soil को further 2 types में classify किया गया है। पहला जो है it is खदर alluvial soil, second is बांगर alluvial soil। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द खदर एंड द बांगर एल्यूवियल सॉइल। खदर एल्यूवियल सॉइल की जब हम बात करते हैं, इट इज द न्यू एल्यूवियल सॉइल, या इसको हम न्यूअर एल्यूम भी बोलते हैं। न्यू एल्यूवियल सॉइल, जब हम बांगर की हम बात करते हैं, इट इज द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। तो ये पहला डिफरेंस आप इसमें लिखोगे। तीसरा डिफरेंस आप लिखोगे इसमें कि जो खदर एल्यूवियल सॉइल है, इट इज मोर फर्टाइल, while as बांगर एल्यूवियल सॉइल की हम बात करते हैं, इट इज लेस फर्टाइल। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आप लिखोगे इसमें कि इट हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, ठीक है ना। खदर में देयर इज अ लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, और इसमें देयर इज अ मोर कंसंट्रेशन ऑफ द कंकर नोड्यूल्स बांगर एल्यूवियल सॉइल की जब हम बात करते हैं। ये 3 डिफरेंसेस आप इनमें लिखोगे। चौथा डिफरेंस भी आप ऐड कर सकते हो कि दैट इट इज फाइन इन टेक्सचर, और बांगर को आप लिखोगे दैट इट इज बिट कोर्स इन टेक्सचर। ये 4 डिफरेंसेस, अगर इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया कि जहां पे आपने डिफरेंशिएट करना होगा बांगर एंड खदर एल्यूवियल सॉइल को, तो ये 4
डिफरेंसेस आप इनके बीच में लिखोगे। ये 4 डिफरेंसेस जो है ये आप लिखोगे। नंबर 1 जो है खदर में आप लिखोगे न्यू एलिवल सॉइल, इसको आप लिखोगे बांगर का ओल्ड एलिवल सॉइल। इसको लिखोगे आप मोर फर्टाइल, इसको लिखोगे आप लेस फर्टाइल। इसमें लिखोगे आप लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, इसमें लिखोगे आप मोर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। और खदर में आप लिखोगे खदर में आप और एक पॉइंट आप लिखोगे इट इज फाइन इन टेक्सचर, और इसको आप लिखोगे इट इज बिट कोर्स इन टेक्सचर। इज दैट क्लियर? तो एज यू कैन सी हियर न्यू एलियम एंड ओल्ड एलियम it contains nutrients such as potash, phosphoric acid and lime, so it is fertile and good for the growth of sugarcane, rice, wheat and the pulses। ये यहाँ पे खदर एलिवल सॉइल की बात की जा रही है। ये एडिशनल पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जो ये खदर एलिवल सॉइल है इसमें पोटैश पाया जाता है, इसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, इसमें लाइम पाया जाता है, एंड इसके अलावा इट इज कंसिडर्ड फर्टाइल एंड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, राइस एंड व्हीट एंड पल्सेस की इसमें कल्टिवेशन की जाती है ऑन अ लार्ज स्केल। एज यू कैन सी हियर दिस इज ब्लैक सॉइल हियर। देन वी आर हैविंग ब्लैक सॉइल भी, मैं इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की है। हालांकि पूरी ब्लैक सॉइल को हमने डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको याद होगा क्वेश्चन हमने दिया था कि आपने कुछ स्टेट्स का नाम बोलना है जहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है एंड कौन से क्रॉप्स ब्लैक सॉइल में कल्टीवेट किए जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरी सॉइल जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको याद होगा वन शॉट में भी हमने पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल की जब हम बात करते हैं इट इज आल्सो नोन एज द र्यूगर सॉइल। इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड सुटेबल आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन। और ब्लैक सॉइल में अगर आपको याद होगा हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें एक यूनिक एबिलिटी है कि इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि बहुत देर तक ये अपने अंदर मॉइस्चर को रिटेन करते रखती है। एंड जो पेडोलॉजिस्ट है, जो सॉइल साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो कि जो इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो है वहां पे एक जाइगेंटिक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ एंड उसी जाइगेंटिक वॉल्केनिक इरप्शन से लावा इरप्ट हुआ, और जब वो लावा सॉलिडिफाई हुआ उसी से ब्लैक सॉइल जो है वो जो है दैट हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल की हम बात करते हैं, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, इसको र्यूगर सॉइल भी बोला जाता है। वाई ब्लैक सॉइल? बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर एंड वेरी गुड फॉर द कॉटन कल्टिवेशन। र्यूगर जो है इसको र्यूगर जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड which means black and it is made up of extremely fine clay materials, fine clay materials की ये बनी है। एंड ये वाला पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि it has the unique ability of retaining moisture for a long period of time। and then we are having this soil is sticky है ये and is mainly found in, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले दिया था। किन के कुछ स्टेट्स का आपने नाम बोलना है जहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डेक्कन ट्रैप में ये सॉइल पाई जाती है एंड कहां पे? महाराष्ट्र में, गुजरात है, देन वी आर हैविंग मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। दीज आर द स्टेट्स जहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आई एम रिपीटिंग, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी एंड छत्तीसगढ़। इट इज फॉर्मड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है ना। वॉल्केनिक रॉक्स की वेदरिंग की वजह से दिस सॉइल हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट इज वेरी रिच इन पोटैश। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट में रिच है ये, मैग्नीशियम में एंड लाइम। इट इज पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स, फास्फोरिक कंटेंट्स में ये लैक कर रही है और देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरिक एसिड की हम बात करेंगे। बट इट इज वेरी रिच इन potash, it is very rich in calcium carbonate, magnesium and then we are having the lime। और कौन क्रॉप इसमें हम कल्टीवेट करते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है कॉटन की कल्टीवेशन की जाती है। इसमें कुछ एरियाज में इसकी जूट की भी कल्टीवेशन की जाती है। इसमें अलावा टबैको की कल्टीवेशन की जाती है, ग्राउंड नट्स की कल्टीवेशन की जाती है, कई एरियाज में राइस की भी इसमें कल्टीवेशन की जाती है। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द डिफरेंट क्रॉप्स जो हम ब्लैक सॉइल में क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं। तो अगर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि ब्लैक सॉइल किन स्टेट्स में पाई जाती है, स्टेट्स का आप नाम याद रखोगे और कौन कौन से क्रॉप्स ब्लैक सॉइल में कल्टीवेट किए जाते हैं। सो दिस वाज ब्लैक सॉइल। देन वी आर हैविंग सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन होती क्या है? उसके बाद में soil erosion, what are the different factors that are responsible for soil erosion? Soil erosion की जब हम बात करते हैं it simply means removal of soil
from one place to another. या removal of the topsoil by natural agents like running water and wind. Running water and wind से जो ऊपर की जो टॉप सॉइल है जब ये क्या वॉश आउट हो जाती है, that is called as the soil erosion. Simply removal of topsoil from one area to another by natural agents like running water and the wind. खाली natural agents running water and wind ही responsible नहीं है, बल्कि आप देखोगे हमने यहां पे देखा रनिंग वाटर एंड विंड ये नेचुरल फैक्टर्स हैं, बल्कि ह्यूमन फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है. वी ह्यूमन बींग्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन. इसमें ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आता है? डिफॉरेस्टेशन आता है, इट्स अ ह्यूमन फैक्टर. ओवरग्रेजिंग आता है, इट्स अ ह्यूमन फैक्टर. उसके बाद में अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स आते हैं या अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आता है. सो दीज आर द ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन. सो आप याद रखोगे कि जब हम सॉइल इरोजन की बात करते हैं इसमें फिजिकल फैक्टर्स या जिनको हम नेचुरल फैक्टर्स भी बोलते हैं, इसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है. व्हेन वी टॉक अबाउट द physical factors or the natural factors, it is running water and the wind which is responsible for soil erosion. And as far as the human factors are concerned, human factors may we have deforestation, we have overgrazing, then we are having unscientific farming methods. Even इसमें हम over irrigation भी use कर सकते हैं, over irrigation भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. So these are the factors responsible for soil erosion. Then we are having gully erosion. कि इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको दिया था, डिफरेंसेस या डिस्टिंग्विश बिटवीन द गली इरोजन एंड द शीट इरोजन. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है. पेपर्स अगर आपने चेक किए होंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ होगा कि डिफरेंसेस क्या है बिटवीन द गली इरोजन एंड द शीट इरोजन. तो सॉइल जो है सॉइल इरोजन होती है थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ठीक है ना, मगर या थ्रू डिफरेंट वेज. मगर टू कॉमन वेज ऑफ soil erosion in India. Number one is the gully erosion and number second is the sheet erosion. Gully erosion क्या होता है कि जब बारिश गिरती है, बारिश गिरने के बाद as we know that some water percolates beneath the earth's surface, while as some water जो है ना it flows rapidly on the surface of the earth. और अगर वहां पे sufficient plant cover नहीं होगा, तो अगर ऊपर टॉप सॉइल के ऊपर प्रोटेक्टेड कवर नहीं होगा, सफिशिएंट प्लांट कवर नहीं होगा, तो वहां पे उस सरफेस रन ऑफ की वजह से वहां पे गुलीज बनती है, ठीक है ना, वहां पे स्मॉल चैनल्स बनते हैं. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो गुलीज है वो जो है ना साइज में क्या बढ़ जाते हैं, ठीक है ना. एंड दैट लेड टू व्हाट? दैट लेड टू द गली इरोजन, ठीक है ना. और गली इरोजन से लैंड जो डेवलप हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज द बैड लैंड. और अगर आपने एग्जांपल देना होगा गली इरोजन की, चंबल वैली. चंबल इज द नेम ऑफ द रिवर. ये एमपी में है और इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा. तो चंबल वैली इन एमपी इज द बेस्ट एग्जांपल एज फार एज द गली इरोजन इज कंसर्न. एज यू कैन सी हियर द रेन वाटर व्हिच व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड स्कूप्स अवे द सॉइल. जब रेन वाटर क्या करता है? व्हेन इट मूव्स डाउन, मगर कहां पे मूव डाउन करता है? कहां पे फ्लो करता है? अनइवन लैंड के ऊपर, ठीक है ना. अनइवन लैंड के ऊपर ये फ्लो करता है. वहां पे ऊपर स्कूप्स, वहां पे छोटी छोटी नालियां बनती है, छोटी छोटी गुलीज बनती है, छोटी छोटी चैनल्स बनती है. एंड उसके बाद में फॉर्म डीप चैनल्स, वहां पे डीप चैनल्स बनते हैं. एंड उन डीप चैनल्स को बोला जाता है क्या? गुलीज. कि जब रेन वाटर फ्लो करता है, कहां पे फ्लो करता है? अनइवन लैंड के ऊपर. और उस अनइवन लैंड के ऊपर डीप चैनल्स बनती है और उन डीप चैनल्स को बोला जाता है क्या? गुलीज. दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड गली इरोजन. एंड उस टाइप के इरोजन को बोला जाता है क्या? गली इरोजन. A land which is broken into many small parts by the gullies. और बाद में जब वो गुलीज बनती है ना, उससे लैंड जो है ना वो ब्रोक हो जाती है. लैंड जो है ना वो डिवाइड हो जाती है स्मॉल पार्ट्स में. और उन्हीं मगर वो जो लैंड डिवाइड हो जाती है स्मॉल पार्ट्स में, वो होती है किससे? गुली से. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाऊंगा गुली इरोजन की इमेज में आपको दिखाऊंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि जब ये गुलीज की वजह से लैंड डिवाइड हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है ना, उससे क्या हो जाता है? इज कॉल्ड बैड लैंड. एंड जब लैंड डिवाइड हो जाती है उन गुलीज की वजह से डिफरेंट पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड एज द बैड लैंड. एंड बैड लैंड की मैंने आपको एग्जांपल दी, गली इरोजन की एग्जांपल मैंने आपको दी चंबल वैली इन एमपी. और बैड लैंड जो है इट इज कंसिडर्ड अनफिट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना, या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसके ऊपर हम क्रॉप्स कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं.
उस लैंड के ऊपर जहां पे ये गली इरोजन होती है, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर दिस इज यू कैन सी हियर द इमेज रिलेटेड टू द गली इरोजन। एज यू कैन सी हियर यहां पे गलीज की वजह से लैंड जो है ना, लैंड जो ये डिवाइड हुई है ना, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये गला ना गलीज है, स्मॉल स्मॉल
सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोस्ट बंगाल में जिसको बोला जाता था क्या ह्यूज ऑफ द गया डैम को कंस्ट्रक्ट करने से भी हम जो है फ्लड कर सकते हैं, ठीक है ना। में स्लोप को आपने कट करना है, आपने लैंड को फ्लो करना है अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये लैंड है, ठीक है ना, आपने ऐसे फ्लो करना है, बात समझ में आ रही है, आपने ऐसे फ्लो करना है, ठीक है। तो जो आपने अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड फ्लो करना है। तो जब आप अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड को फ्लो करोगे, आप वहां पे डी एक्सेलरेट करोगे फ्लो ऑफ वाटर, कि पानी का जो अगर पानी ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना, ऐसे फ्लो करेगा तो इरोजन होने की ज्यादा चांसेस है। मगर आप लैंड को फ्लो कर रहे हो, ठीक है ना, आप लैंड को ऐसे फ्लो कर रहे हो, ठीक है ना, जब आपने लैंड को ऐसे फ्लो किया तो जो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड, बात समझ में आ रही है, उससे आप पानी की फ्लो को आप डी एक्सेलरेट कर सकते हो। तो काउंटर फ्लोइंग भी एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है जिससे आप आपके साथ आपने क्या कंट्रोल करना है। These are the different जो इस वाले एग्जामिनर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। डेवलपमेंट
भाई